ایجوکیشن کا اس کے روزگار کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ ہماری نہیں ہے۔ اب لاسٹ بات امپلائبلٹی اور کلینیکل لیگل ایجوکیشن سے متعلقہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اگر آپ وکلا صاحبان، بہت ہی ادب سے میں گزارش کرتا ہوں، کیونکہ لرننگ کا پروسیس ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ بہترین انسان، بہترین معاشرہ، بہترین شہری وہ ہے جو اپنے سابقہ علم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مزید علم آگے بڑھائے۔ میں بطور جوڈیشل افسر تقریباً 12واں سال ہے مجھے گورنمنٹ سروس میں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں تقریباً 8واں 9واں سال ہے۔ امپروومنٹ ڈے بائی ڈے ہوتی ہے، کنسیپٹ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلے علم تھا وہ ڈیفیکٹو تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایکسپیرینس کے ساتھ انسان کی لرننگ بہتر ہوتی ہے۔ میں تمام وکلا صاحبان سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ جو کام اس وقت ہے یا جو کام کر رہے ہیں اس سے متعلقہ اگر آپ لوگوں کے پاس پریکٹیکل ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے، اب دیکھیں نا، اس بات میں ہمارے دو پروسیجر ہو گئے، سول اور کرمنل کا۔ میٹرز عام طور پر دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے سول اور کوئی ہوتا ہے کرمنل، لیکن پروسیجر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں۔ سول کی میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں، گارڈین ہے، رینٹ پٹیشن ہے، آپ لوگوں کا پریمپشن ہے، فیملی لاز ہیں، جتنے بھی ہیں، عام طور پر جنرلی سول لا کا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے، انلیس پروہیبیٹڈ نہ کیا جائے۔ لیکن اس پر بھی خوبصورت بات ہے، فیملی لا یا رینٹ لا کی شاید آپ لوگوں کے ذہن میں مثال آئے گی کہ سر اس کے لیے تو اسپیشل پروسیجر ہے، لیکن جتنا وضاحت کے ساتھ سی آر پی سی یہ سی پی سی ہے ہمارے پاس، اسپیشل لا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں پروسیجر بارو کرنا پڑتا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا ایکسپیرینس کی یا آپ لوگوں کی لرننگ کی کہ نیکسٹ بہتری کیسے ہو سکتی ہے، وہی اس کو نا ماڈلنگ کہتے ہیں ہم، ماڈلنگ اپروچ، اس کو نیورو، وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، کنسیپٹ ایک ڈاکٹرین ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی اگر کام ہے نا پریکٹیکل، کوئی کیس وغیرہ آ جاتا ہے، اگر آپ لوگ اس سے متعلقہ، اس سے ملتا جلتا کیس پہلے دیکھ لیں کہ اس میں پلیڈنگ کیا تھی، فیصلہ کیا تھا، ایویڈنس کیا تھی، کیا ہوا تھا، بہت حد تک بندہ درست اندازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور انسانی فطرت کی جو نفسیات کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، جب علم ہو نا اس کے بعد پھر اعتماد آ جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلے ایک چیز کو پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کی بولنے کی صلاحیت، انداز گفتگو انٹائرلی 100% امپروو ہوگی۔ اب اس کے ساتھ یہی گزارش کروں گا کہ کلینیکل لیگل ایجوکیشن کمپیٹنسی ایکسپرٹیز کو لنک کریں امپلائبلٹی کے ساتھ۔ جب جتنی زیادہ محنت کریں گے، سمجھداری سے ریئل ورک کریں گے، اتنے ہی بہترین امکانات ہیں روزگار کے بہتر ہونے کے۔ اور پوری دنیا میں امپلائبلٹی کا کلینیکل لیگل ایجوکیشن کے ساتھ 100% ریلیشن شپ ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بات، وہ گزارش کر رہا تھا نا کہ ود دی پیسج آف ٹائم انسان کے تجربات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان میں ہم لا کے پروفیشن کو صرف یہ سمجھتے تھے کہ صرف بکس پڑھ لیں، محنت کر لیں، پھر اس کے بعد پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو پوری دنیا کی تحقیق ہے نا، اس پر آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ کی اپنی
काबिलियत भी है, आपका अपना इंटरेस्ट भी है, और भी दीगर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त ने मौका दिया या आप लोगों ने दोबारा कभी मौका दिया तो वो शॉर्टली इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिस अच्छी बेहतर किस तरह हो सकती है, और ये एविडेंस के साथ 100% होगा। ये तख़य्युलाती बात नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, इस पर पूरी दुनिया की तहकीक मौजूद है। और दूसरे जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल जज, एडिशनल सेशन जज या मुख्तलिफ एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, इस पर मैं तकरीबन 2-3 साल से इस शोबे में हूँ। मेरा अपना YouTube चैनल है जिस पर कम अज कम 100 से ज़्यादा लेक्चर्स मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इसके साथ ही मैं अभी चौर साहब को भी, हम सीनियर सिविल जज साहब के पास बैठे थे, सरदार बासित साहब से भी आज मुलाकात हुई। मैं सैयद इजाज़ हुसैन ये गुजारिश करता हूँ आप सब लोगों से कि मैं आज अपना फ़र्ज समझकर, अपने ऊपर वाजिब समझकर आप लोगों के पास आया हूँ इस गुजारिश के साथ कि इस सरजमीन का मुझ पर बहुत हक है। ये मेरा अपना इलाका है, मैं सन ऑफ साइल हूँ। जितना मुझसे हो सका, जो मेरी बसात में है, इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल रब्बी मैं आप लोगों का साथ दूंगा, आप लोगों के साथ चलूंगा। अब नेक्स्ट हम आ जाएं, ये था एक छोटा सा तारुफ कि रीजंस क्या हैं, क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एहतमाम किया, उस एहतमाम के तनाजुर में आज हम सब लोग एक छत के नीचे बैठे हैं। बेटा वो ज़रा अब चला दें। अब जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत अदब के साथ, पहले जो लेक्चर हुए मुझे ज़्यादा नहीं पता कि किस तरह हुए थे, लेकिन जो आज का लेक्चर है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क होगा। प्रैक्टिकल वर्क इसकी ना मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। जैसे हमारे मेडिकल के बच्चे होते हैं, MBBS वगैरह वाले, उनको पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद उन्हें ऑपरेशन सर्जरी दिखाई जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि उन्हें कहा जाता है कि अब आप लोग अपने हाथ से ऑपरेशन करें, और इस पर जो पूरी दुनिया की तहकीक पहुंच चुकी है, अमेरिका, बरतानिया वगैरह इस चीज़ को फॉलो करें। अब वो ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टूडेंट, जब आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं लॉ की, उसी दौरान ही आप लोगों की क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इतनी बेहतरीन कर दी जाए कि डिग्री हासिल करने के बाद आप लोगों को किसी सीनियर के पास ना जाना पड़े, और ये बहुत आसान है, इस पर कोई बड़ी साइंस नहीं है। बात यह है कि वो तो इंशाअल्लाह ताला मेरे थीसिस की सजेशंस होंगी, रिकमेंडेशंस होंगी कि इस 5 साल दौरानिए को अगर इसमें 2 इयर्स कोड प्रैक्टिस साथ रख दें, सीनियर के साथ लिंक कर दें, अटैच कर दें, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, सीनियर मोस्ट लेयर हो, जो अपनी निगरानी में बच्चों को ले। अभी जो 5 साल में से 2 साल मैं बता रहा हूँ, अब वो सीनियर काउंसिल साहब अपनी निगरानी में बच्चे से कोर्ट में आर्गूमेंट्स करें, लिख के दे दे ना, कहें जज साहब को कि जी ये आर्गूमेंट्स कर रहा है और अकॉर्डिंग टू लॉ ये कर सकता है, इसके आर्गूमेंट्स सुने, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वगैरह करें, इश्यूज फ्रेम करें, क्रिमिनल लॉ की सारी प्रैक्टिस करें, दावे जवाब दावे, FIR, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इश्यूज, एविडेंस, फाइनल आर्गूमेंट्स, अजरा। अब ये 5, 7, 8 या टोटल 10 चीज़ें हैं। इनमें कौन सी ऐसी कोई रैकेट साइंस है जो समझ नहीं आएगी इन बच्चों को? वो तो इंशाल्लाह ताला बाद की बात है। अब जो आज का था ना, जो मुझे हुक्म दिया गया था कि फ्रेमिंग ऑफ सूट से मुतल्का, ये बेटा
यार ये माइक दूसरा नहीं है, ये मूव करने वाला, ये चलता है। अच्छा, असल में ये पढ़ने पढ़ाने की आदत है ना, थोड़ा सा हिलचुल होनी चाहिए। अब खड़ा खड़ा अजीब सा लग रहा है, आप लोगों को भी शायद नींद आ रही होगी, अगर आप लोगों के साथ आ जाता तो शायद एक्टिव हो जाते। वकला साहबान, आज का जो हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविल सूट, के सिविल सूट दायर कैसे किया जाता है, इसकी स्टेजेस क्या हैं। अब इस पर यह बात सुन लें जो हतमी और एक बात है, जो हमारा पाकिस्तान का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है। सूट को हम दावा कह सकते हैं। दावा एक आम लफ्ज है हमारे कल्चर का, पंजाबी ज़बान है, उर्दू है या सिरैकी है। अक्सर औकात हम अपनी डेली लाइफ में ये सुनते आए हैं क्या कि जी मेरा ये दावा है, हाँ भी तेरे दावे का की बने है। या पंचायत में चले जाते हैं बुजुर्गों के पास कि जी मैं तुहाडे कोल दावा कहंदे आया, मेरा जी दावा है। अब जो आम इंसान कहता है कि मेरा दावा है, मेरा दावा है, उसका दावा क्या है? कानून ने, सीपीसी ने इसको क्या नाम दिया है? पहले नंबर पे सुन ले, डिपेंड करता है उसकी काज ऑफ एक्शन क्या है, बनाए दावा। अब वो कह तो रहा है ना कि मेरा दावा है, बेसिकली जो शख्स कह रहे हैं ना मेरा दावा है, वो इनडायरेक्टली तो कह रहा है मेरा दावा है, लेकिन डायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि मेरा हक मारा गया है। पाकिस्तान का कानून जो उसे हक देता है, अभी हमारे ध्यान और देहातों में आम मिसालें हैं, जब कब्जा हो जाता है किसी की जमीन पर, जब किसी को पैसे नहीं मिलते, किसी से लेने होते हैं, या और तरह के कई मामलात होते हैं, वो इंसान चीख कर कहता है कि मेरा दावा है। इससे मुराद यह है कि उसे कोई काज ऑफ एक्शन हासिल है। काज ऑफ एक्शन है बनाए दावा, वजह कि आपका अगर दावा है तो क्यों है। इस बात का सारा जवाब कानून में सीपीसी के सेक्शन 9 में है, जिसको हम कहते हैं यू बाई जस, यू बाई रेमडियम। अगर राइट है तो रेमेडी है, अगर राइट नहीं है तो रेमेडी भी नहीं है। अब वो शख्स कह रहा है कि मेरा दावा है, अगर उसका दावा बेस करता है सिविल सूट पर, तो वो बंदा क्या करता है, आम हालात में क्या होता है, रहीम यार खान में आ जाएगा। अगर तहसील रहीम यार खान का रिहायशी है, किसी वकील साहब के पास कि जी वकील साहब मेरा ये मसला है, वकील साहब उसकी सारी बात सुनेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका दावा लिखा जाएगा। अब जो दावा लिखा जा रहा है वो प्लेंट है, जिसे हम अर्जी दावा कहते हैं। अब ये देखें ना, 2-3 चीजें हैं, दावा, सिविल सूट, प्लेंट आ गई और साथ कागज ऑफ एक्शन आ गई। अब आप लोग वकला साहबान क्या करते हैं कि हाँ कागज लाया, कागज कितने ने, ज़बानी कह रहे हैं कोई दास्ते से ही पटवारी को कितने ने, वो बंदा हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके देता है। उसके बाद क्या है स्टेज, पहले ये ना एक कहानी की तरतीब की शक्ल में सुन लें, उसके बाद नेक्स्ट मैं गुजारिश करता हूं। अब वकील साहब हैं, फर्ज क्या चौर साहब हैं, इनके पास इनके गांव का बंदा आ गया कि जी चौर साहब, वो उस बंदे का नाम असलम है, अगरचे सगे भाई हैं। चौर साहब को असलम कहते हैं जी अकरम मेरा भरा है ना, उन्हें मेरे नाल वाली जमीन दे कब्जा कर लिया, हालांकि साड़ा मुश्तरका कब्जा है, ये अब्बा मैनू इंतकाल दे गया सी। चौर साहब वो लड़ता भी है, मैं नहीं लड़िया, कोई कत्ल ना हो जाए, ये मेहरबानी करो। चौर साहब सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, प्लेंट अर्जी दावा चौर साहब लिखते हैं या कंप्यूटर से लिखवा लेते हैं, उसके साथ मुतलका डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, फर्द है, जमाबंदी है,
उसके वाले साहब का शनाख्ती कार्ड है, उसका अपना है, और जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं सीपीसी जो बता रही है, आर्डर 13(1) हो गया, आर्डर 7 रूल 14 हो गया, फर्द पता हो गया, लिस्ट वारसान हो गई, ये सारी चीज़ें चौहर साहब लिखवा देते हैं। अब जो लिखवा रहे हैं चौहर साहब, इसका कानून में कहाँ है जवाज या जवाब? आर्डर 7, आर्डर 6, अगर इन हम दो को गौर से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा प्लेंट क्या है। इसका फॉर्मेट अपेंडिक्स भी दिया गया है एंड में। जब ये मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा, कोर्ट कमिश्नर से जो भी है वो वेरिफिकेशन वगैरह करा लेंगे। अब चौहर साहब खुद या इनके मुंशी साहब जाएंगे हमारे सीनियर सिविल जज साहब के पास, वहाँ दावा दायर हो जाएगा। सीनियर सिविल जज साहब उसके बाद दावा मार्क करेंगे एडमंड कोर्ट को, क्योंकि इस वक्त सीनियर सिविल जज साहब खुद एडमंड कोर्ट भी हैं और ट्रायल कोर्ट भी हैं। उनका ये अपना अख्तियार है, खुद दावा रख सकते हैं सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीजन, या किसी एडमंड जज साहब को मार्क कर देते हैं। अब मैं शुरू से गुजारिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल जब तक काम नहीं होगा, ऐसे ज़बानी बातें, अब यही है ना कि आप लोग माशाल्लाह सीनियर लॉयर्स बैठे हैं, वकील साहबान जो बच्चे 5 साल बैठे हैं, सीपीसी में यही चीज़ें तो पढ़ के आए हैं। तो आज फिर जो बातें मैं सारी कर रहा हूं उनमें और पहले के लेक्चर्स में क्या फ़र्क है? आज मैं अपने पास एक डिसाइडेड केस की फाइल लाया हूं, उसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या हैं। अब एक बंदा कहता है कि मेरी तारीख पैदाइश है 1967, 1967, महीना वो कोई बता रहा है जनवरी का या जून का, लेकिन नादरा ने शनाख्ती कार्ड में मेरी तारीख पैदाइश 1960 लिखी हुई है। ये गलत है, मेरे पास सबूत है, बर्थ सर्टिफिकेट है और स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो मेरा हक है कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसी के मुताबिक मेरा शनाख्ती कार्ड हो। अब भाई मेरे ये कहानी क्या है सारी? ये काज ऑफ एक्शन है जो एक पाकिस्तानी शहरी को हासिल हुई है। अब वो अपना हक कहां तलाश करेगा? डेक्लेरेटरी सूट करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 42। अब वो बंदा फर्ज किया चौहर साहब को आके सारी दास्तान बताता है कि चौहर साहब मेरे साथ तो ये हो चुका है। उस वक्त शनाख्ती कार्ड बन गया था 60 का, लेकिन असल मेरी 67 है और चौहर साहब हकीकत में ये है मैंने कहीं अप्लाई करना है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं ओवरएज हो जाऊंगा, लेकिन मैं हूं हक सच पर। तो वकील साहब क्या करेंगे? अर्जी दावा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, स्टाइल आप लोगों को है पता। आज अगर बारीकी में जाएंगे तो फिर आज का लेक्चर शायद मुकम्मल ना हो सके, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। अब ये इंतहाई अहम बात, सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीजन साहब के पास दावा दायर कर दिया, उन्होंने मार्क किया एडमिनिस्ट्रेटिव जज को। एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल जज का मामला शुरू हुआ 2020 के एंड में, नवंबर में, कि अब पाकिस्तान का सिविल लॉ ऐसे चलेगा प्रोसीजर के हिसाब से। केसेस डिसाइड जो 2 जज साहबान करेंगे, एक होगा एडमंड जज और एक होगा ट्रायल जज। अब ये नादरा का केस या दीगर केस एडमंड जज साहब के पास चला गया। अब एडमंड जज साहब क्या करेंगे? वकील साहब फौरन पहुंच जाते हैं, अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त है आर्गूमेंट्स कर देते हैं। अगर प्रॉमिस ऑफ पंजाब फर्ज किया पार्टी है, उनको जज साहब नोटिस कर देते हैं 1-2 दिन का। उसके बाद आर्गूमेंट सुन लेते हैं। अगर इंटरम स्टे ग्रांट करना हो, जज साहब इंटरम स्टे ग्रांट कर देते हैं और नोटिस जारी कर देते हैं डिफेंडेंट्स को, जितने भी हैं। अब ये नोटिस आर्डर 5 के मुताबिक दायर होते हैं। अब जो ही मुद्दा अलहम को नोटिस वगैरह पहुंच गए, नोटिस पर जज का नाम, डेट लिखा होता है, दावे का नाम, नेचर क्या है दावा, जो नोटिस जारी होता है हमारा। जब ये मुद्दा अलहम के पास नोटिस चला जाता है, वो नोटिस लेके वकील साहब के पास आ जाते हैं कि जी ये है मामला, क्योंकि ये नादरा का केस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नादरा के पास नोटिस चला गया, नादरा का नुमाइंदा मुकर्रर तारीख को आ जाता है कि जी मेरी हाजिरी लगा लें, हम जवाब दावा देंगे।
उसके बाद डेट हो गई, जवाब दावा आ गया। जो ही जवाब दावा आ जाता है मुद्दा अलैम का, उसके बाद फिर एडमिन कोर्ट क्या करती है? पहला काम, अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त है, पहले इंटरम का फैसला हुआ है एक तरह का यक तरफा, दूसरी पार्टी को नहीं सुना गया, दोबारा इस पर बहस होती है दोनों साइड से। जज साहब व्हाटसोएवर जो भी डिसाइड करते हैं, एप्लीकेशन इंटरम कन्फर्म हो गया या खारिज हो गया, इश्यूज फ्रेम कर लेते हैं, कीपिंग इन व्यू द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज। इश्यूज फ्रेम हो गए, बर्डन जिस पर आया, प्लेंटिफ पर या डिफेंडेंट पर, वो जज साहब ने लिख दिए। उसके बाद केस ट्रायल कोर्ट के पास चला जाता है। जैसे मैं नादरा की मिसाल दे रहा हूं, अब सर समी साहब हैं मेरे एडमन जज साहब, नादरा का जवाब दावा उनके पास आ गया, जज साहब ने इश्यूज फ्रेम कर दिए। सरदार बासे साहब पर मैं बहुत मशकूर हूं, तो सर से मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया था, चलो उनकी मौजूदगी में बता दूं, मैंने कहा सर चौहर साहब, बासे साहब, दोस्त मोहम्मद साहब हैं, बाकी सीनियर कौंसल साहबान, चलो मुझे भी शामिल कर लें, आप सब लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कुछ हम कर सकते हैं ना, अब इसका एक छोटा सा हिंट दूंगा, क्योंकि गारज तो कोई है नहीं और अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना है, कोई इस पर इनाम नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर सिर्फ एक ही बात करूंगा, ये एक भलाई है और खैर है। जो भलाई और खैर किसी दूसरे की खातिर की जाए। किसी आलिम से पूछा गया, आलम इस्लाम का, कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक जनरल क्वेश्चन दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों से है कि जिसका जो खुदा है उनके मजहब के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है? जवाब सिर्फ एक था, किसी का कोई मुख्तलिफ जवाब नहीं था, जवाब सिर्फ एक था कि दूसरे का फायदा। जो दूसरे का फायदा है ना, कायनात की सबसे अव्वल नंबर 1 इबादत है और अल्लाह को ये पसंद है। और जो इंसान इस इबादत का जहन बना लेता है कि मैंने बेगर्ज होकर ये इबादत करनी है, तो दोस्तों उस इंसान के कंधे पर अल्लाह का हाथ होता है, और जिस्म के कंधे पर अल्लाह का हाथ हो वो कंधा कभी नहीं झुकता। तो चौहर साहब से, बासे साहब से, मुमताज साहब से यही मेरी गुजारिश है, अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की वजह से अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी, और इज्जत का तकाजा सिर्फ और सिर्फ यही एक है, कर्जा है ये आप लोगों का इन पर, कि उस कर्जे को लौटाएं। कैसे लौटा सकते हैं? अपना जिंदगी का बेहतरीन तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करें। मिसाल दे रहा हूं, इनके पास जितने केसेस हैं, नए लोग आए हुए हैं, अभी लाइसेंस जिनका नहीं बना या बनने के प्रोसेस में है, उनको ये अपनी शागिर्दी में लें, कराएं काम, दें काम, और ये कसम उठा लें कि लाइसेंस के बाद आप लोग किसी के पास काम नहीं सीखोगे। आप लोगों को इतना इस कदर काबिल कर दिया है कि अब लिफाफे उठाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। खादिम साहब हो गए, इसमें खास केली साहब, आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुजारिश है, इस्तदा है, ऐसे समझे हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस नई नस्ल के साथ, इस मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए ये कुर्बानी दें। तो सरदार साहब आ गए, बात इधर आ गई। अब एडमंड जज वाला ऑर्डर 4A डील करता है, नई अमेंडमेंट है, 2020 के नवंबर में आ गई थी। अब एडमंड जज साहब के और मामला सुन लें, वो क्या करते हैं। ये तो नादरा का एक सिंपल सा केस था ना, मसलन वरासत का मामला आ जाता है, बहुत टची इशू आ जाता है, वाकई केस में जान हो, तो उस पर हमारा ऑर्डर 6, 7, 8, 9A, 10, 11, 12 ये 4, 5, 6 ऑर्डर्स हैं CPC के।
उनको हमने मद्देनजर रखना होता है। मकसद क्या था इसका अमेंडमेंट मुतारिफ कराने का कि डिले को कटरेल करना है। पाकिस्तान का जो बदकिस्मती से हमारा निज़ाम अदल है, डिले है, मर रहे हैं लोग, फैसले नहीं हो रहे, इस पर ये अमेंडमेंट की गई। अब ये इन तमाम आर्डर्स का मकसद था सिर्फ डिले को कटेल करना। अब उनको पढ़ें, क्या है कि जब इश्यूज वगैरह फ्रेम होने लगे उस वक्त बता दें, प्रपोज इश्यूज दे दें कि कौन सा इशू किस पर है, कौन सा रह गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके पास है, किसका जवाब, किसका अर्जी दावा सही तफसीली नहीं है, उसमें इंटेरोगेटरीज वगैरह हैं। ये सारे काम मुकम्मल करके ट्रायल जज साहब के पास केस आ जाता है। अब ट्रायल कोर्ट का काम है बुनियादी तौर पर एविडेंस रिकॉर्ड करना, लेकिन मिसलिनियस कई मसाइल आ जाते हैं, कोई मर जाता है मुद्दई मुद्दालय में से, अमेंडेड प्लेंट आ जाती है, कोई यक तरफा हो चुके होते हैं, कोई एक्स पार्टी हो चुके हैं, उनकी सेटिंग साइड आ जाती है, कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है हालात और वाकयात के मुताबिक, तो वो ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करती है। अब इसका मैं आप लोगों को बता रहा था नादरा का एक सिंपल सा केस। अब एविडेंस का जो तरीकाकार है, स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सबसे पहले है काज ऑफ एक्शन, वही कि किसका क्या हक मारा गया है, क्या हक उसे सेक्शन 9 के मुताबिक पाकिस्तान का कानून उसे देता है। अब सिविल राइट क्या है, जो लफ्ज सिविल है ना, ये जेनेरिक है, ये डिराइव हुआ है सिविक से। सिविक का मतलब होता है शहरियत। पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपने तमाम हकूक रखता है जो उसे पाकिस्तान का आइन देता है। ये एक बेसिक है, जूरिस्प्रूडेंस है हमारे पाकिस्तान की। अब सिविल राइट हो गया, सिविल सूट हो गया, प्लेंट हो गई, हमारी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गई। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अब इश्यूज फ्रेम हो गए, उसके बाद एविडेंस आ गई। एविडेंस का बर्डन किस पर है, किसने पहले शहादत पेश करनी है, लेकिन अमूमन आसानी की खातिर मुद्दई पहले अपनी शहादत पेश करता है इश्यूज के मुताबिक। प्लेंटिफ उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, डिफेंडेंट पार्टी उस पर क्रॉस एग्जामिन करती है। जब दोनों की एविडेंस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद केस फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए आ जाता है। जब फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं उसके बाद केस का फैसला होता है, फैसला डिसमिसल या डिक्री। उसके बाद वो नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है। अगर पार्टी एग्जीक्यूशन में आना चाहती है उसकी डिक्री एग्जीक्यूटेबल है। अब कुछ डिक्रीज ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटेबल हैं, लेकिन बाद का जो हुकूमत के खिलाफ डिक्री होती है, रोला ये होता है कि हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती। फिर उस पर अमल दरामद के लिए हमारे पास आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास कि आप इस पर अमल दरामद करें। हम सिविल कोर्ट, सिविल जज बतौर एग्जीक्यूटिव कोर्ट उस पर अमल दरामद कराते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास चल रहे हैं इस तरह के मामला, और कोशिश होती है कि जितना अल्लाह पाक ने हमें एक अख्तियार दिया है उसको इस्तेमाल करें मखलूक खुदा के लिए। अब ये लास्टली हमारा स्लाइड का है, लेकिन आप सब लोगों के लिए खुशी और अच्छी बात यह है कि जो कुछ स्लाइड में ज़बानी बता चुका हूँ तो आप लोगों को शायद अब इतनी तकलीफ ना हो मज़ीद बात सुनने की। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट जो हमारा बेसिक लॉ है ना, सिविल लॉ के हिसाब से सेक्शन 15 डील करता है। सेक्शन 15 क्या कहता है कि हर दीवानी दावा सबसे जो निचले दर्जे की अदालत है उसी में दायर किया जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, डेक्लेरेटरी सूट है, इसको अमूमन कोशिश की जाए सिविल जज क्लास 3 ट्राई करे, क्योंकि वो हमारी सबसे छोटी अदालत है, उसकी ये कॉम्पिटेंसी है कि वो डेक्लेरेटरी सूट कर सकती है। इसके अलावा जुरिडिक्शन पर अगर कभी मौका मिला इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। लेकिन जो सीनियर साहब का मैंने आप लोगों को कहा ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है,
ایک سسٹم کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے سینئر سول جج صاحب کا ایک وایا ایک چینل رکھا ہوا ہے. اب سیکشن 15 یہ کہہ رہا ہے, اس کے بعد سیکشن 26 ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں, کاپیز وغیرہ ہیں, وہ ساری لگا دی جائیں گی. نیکسٹ سلائڈ پہ بٹھا جائیں. اب پلین کا بتا دیا, جو زبانی اردو الفاظ میں تھوڑا سا مکسچر پنجابی اور سریکی کا کیا, انگریزی میں یہی لکھا ہوا ہے. اب کسی بندے کا کوئی نقصان ہو گیا ہے, قبضہ ہو گیا ہے, اس کا ایک بیانیہ ہے کہ جی مجھے میرا حق دیا جائے. یہی حق جب کچھ کاغذوں پر لکھ دیا جائے گا قانون کے مطابق تو اسے ہم پلینٹ کہیں گے. نیکسٹ بیٹا چلو. اب کاز آف ایکشن بنائے دعویٰ. اکثر جو کہتے ہیں نا کہ آخر دھاڑ کیا ہے, کوئی بندہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, دھاڑ مار رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے. بھائی میرے جو دھاڑ ہے نا یہ کاز آف ایکشن ہے کہ اس کا یہ حق مارا گیا ہے, قانون نے اسے جو حق دیا ہے. اب یہ ایڈمنڈ کوڈ کا میں آپ لوگوں کو فریز بتا رہا تھا 711. اب میں یہاں پہلے ایڈمنڈ کوڈ بھی رہا ہوں, تو سوٹس میرے پاس آتے تھے جن کا اس وقت انسٹیٹیوشن میرے پاس نہیں